Hello everyone, welcome back to Ninja Education. Today we are going to learn fourth lesson of fourth standard, which is multiplication. So before we start, don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. In today's video, we are going to learn about these three things: properties of multiplication, multiplication by 10, 100 and thousands, and multiplication by multiple of 10, 100 and 1000. So before we start, let's revise basics again. Dear students, in a multiplication sum, we know that the number that we are going to multiply is known as multiplicand. Okay? The number by which we multiply is known as multiplier, and the answer we get is known as product. Okay? So these three terms you should keep in mind. Children, we know that multiplication is nothing but repeated addition. Okay? Multiplication कुछ नहीं है, बस repeat पे repeat किया हुआ addition है. For example, 12 multiply by 3, what we get? 12 3s are 36, right? So what does it mean? 12 multiply by 3 is equal to 36, but it is actually 12 plus 12 plus 12, then we get 36. Okay, 12 plus 12 is 24, 24 plus 12 is 36. So 12 multiplied by 3, it means we have to add 12 3 times. Okay, 12 multiplied by 3 का मतलब है हमें 12 को 3 बार ऐड करना है. सो 12 प्लस 12 प्लस 12 करने से हमें 36 मिलेंगे. मतलब हमें जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है उतनी बार हमें एडिशन करना है. ओके, अगेन इस नंबर को हम मल्टीप्लिकेंड कहते हैं जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है. इस नंबर को मल्टीप्लायर कहते हैं जिस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है. और इस नंबर को प्रोडक्ट कहते हैं जो हमें लास्ट में आंसर मिलता है. ओके, सो लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज order property. Okay, in this property, if you multiply a with b is equal to b multiplied by a. Okay, अगर हम a और b का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका आंसर, उसकी प्रोडक्ट उतनी ही आएगी जितनी हम b और a का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें मिलेगी. ओके, सो if we change the order, the answer does not change, it will remain same. Okay, ए और बी का ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 3, व्हाट वी गेट? 2 3s are 6, राइट? एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2, व्हाट वी गेट? 3 2s are 6. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करे या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करे, आंसर विल रिमेन सेम. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी. Students, second property is grouping property. Okay, in this property, if we change the grouping of the factors, the answer does not change, it will remain same. Okay, इस प्रॉपर्टी में हम फैक्टर्स के ग्रुप चेंज करें तो आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा. ओके, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c में हमने b और c को एक ग्रुप में रखा और a को बाहर रखा. ओके, और इधर a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी में a और b को एक ग्रुप में रखा और c को बाहर रखा. ओके, तो हमने ग्रुपिंग्स चेंज किए, लेकिन इससे आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर विल रिमेन सेम. ओके, फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, व्हाट वी गेट? लेट्स सॉल्व. 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4s are 12, right? So 2 multiplied by 12, what we get? 12 2s are 24. Okay, now let's do this. We will put 2 and 3 in one group and we will put 4 out of the group. Okay, 2 multiplied by 3 multiplied by 4. Okay, 2 3s are 6, right? Now 6 multiplied by 4, 6 4s are 24, right? So in the both case answer is same, here also 24 and here also 24. So it proves that changing the grouping of the factors does not change the product will remain same. Okay, now what is factors? Factor क्या है?
ये जो 3 नंबर्स है, ओके, ये जो 3 नंबर्स है जिसका हमने मल्टीप्लिकेशन करना है उन्हें फैक्टर्स कहते हैं. सो दिस वाज आवर सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. ओके, 1 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब 1 का किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें आंसर वो नंबर खुद ही मिलेगा. ओके, इफ वी मल्टीप्लाई 1 विथ एनी नंबर और if we multiply a number with 1 we get the number itself. Okay, 12 multiplied by 1 is 12. Okay, 36 multiplied by 1 is 36. Okay, 379 multiplied by 1 is 379. Okay, it means a multiplied by 1 is a. Okay, a multiplied by 1 is equal to a and also a equal to 1 multiplied by a. Okay, so this is third property, multiplicative property of 1. Now next is multiplicative property of 0. Okay, if you multiply 0 with any number or if you multiply any number with 0, the answer is 0. Okay, the product will always be 0. Okay, a multiplied by 0 is 0 or 0 multiplied by a is 0. Okay, so 23 multiplied by 0 is 0. Okay, 142 multiplied by 0 is 0. So आप कोई भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा. So this was multiplicative property of 0. Students, this is last property, distributive property of multiplication over addition. So let's see what it says. For example, 2 multiplied by 3 plus 4. If we solve it, what we get? Let's see. 2 multiplied by, let's do addition, 3 plus 4, 7, right? And 7 2s are 14. Okay, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सम है 2 multiplied by 3 plus 4. ओके, तो हमने यहाँ पे पहले 3 और 4 का एडिशन किया, फिर जो एडिशन आया 7 आया उसका 2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आंसर मिला 14. ओके, तो हमने पहले क्या किया, एडिशन किया. ओके, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी में है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब कि एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन. ये कैसे करना है, लेट्स सी. सबसे पहले हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और फिर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन वी विल डू 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, और वो दोनों के प्रोडक्ट का हम एडिशन करेंगे. सो यही है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, लेट्स सी. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4. ओके, सो सबसे पहले 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर एडिशन करना है हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 4. ओके, पहले 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 2 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, फिर दोनों के प्रोडक्ट का हमें एडिशन करना है. सो लेट्स सॉल्व इट. 2 3s are 6, राइट, प्लस 2 4s are 8, राइट. नाउ 6 plus 8 what we get? Count yourself. It's 14, right? So you can see that our answer is same, here also 14 and here also 14. So the answer will not change if we do multiplication first rather than doing addition first. So this is the property multiplication over addition. Okay, it was easy, right? Students, next is multiplication by 10, 100 and 1000. It is very easy. Okay, look at here. 35 multiplied by 10. Okay, so if you are multiplying a number by 10 you will put 0 behind the number. Okay, आप अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर के साथ कर रहे हैं तो आप उस नंबर के पीछे एक 0 ऐड कीजिए. सो 35 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 350. ओके, हमने 35 के बाद एक 0 लिखा. नाउ लेट्स सी 35 मल्टीप्लाई बाय 100. If you are multiplying a number by 100 then you will put 2 0 behind the number. Okay, so 35 multiplied by 100 is
3500 और यू कैन से 3500. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 100 के साथ 35 का मल्टीप्लिकेशन किया तो उसमें हमने 35 के बाद 2 जीरोस ऐड किए. ओके, इसी तरह 35 multiply by 1000. If you are multiplying a number with 1000, then you will put 30 behind the number to get the answer. Okay, आप उस नंबर के पीछे 3 जीरो ऐड करेंगे. अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर है 35,000. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या किया, 10 हो, 100 हो, 1000 हो या फिर 10,000 हो, 1 लाख हो या कोई भी, अगर आप किसी भी नंबर को इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि 1 के बाद जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो आप उस नंबर के पीछे लगा देंगे. ओके, यहाँ पे 1 के बाद एक ज़ीरो है तो आपने 35 के बाद एक ज़ीरो लगाया. ओके, यहाँ पे 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो आपने 35 के पीछे 2 ज़ीरोस लगा दिए. यहाँ पे 1 के बाद 3 ज़ीरोस है तो आपने 35 के बाद 3 zeros लगा दिए. ओके, ऐसे. सो लाइक दिस यू कैन डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर विथ 10, 100 and 1000. इट इज इजी, राइट? Our today's last topic is multiplication by multiples of 10, 100 and 1000. Now what is multiples of 10, 100 and 1000? 10, 100 and 1000 के multiples मतलब easy, you already know it. आपको already पता है क्या है. चलो फिर से देखते हैं. 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ओके, तो ये सारे नंबर्स हैं, ये 10 के मल्टीपल्स हैं. ओके, 10 को 2 टाइम्स मल्टीपल करें तो हमें 20 मिलेंगे. 10 को 3 टाइम्स मल्टीपल करें तो हमें 30 मिलेंगे. 10 को 4 टाइम्स मल्टीपल करें तो हम 40 मिलेंगे. तो ये सारे 10 के मल्टीपल्स हैं. ओके, वैसे ही 100 के मल्टीपल हैं 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन. ओके, 100 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मिलेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो 300 मिलेंगे एंड सो ऑन. तो ये है 100 के मल्टीपल्स. और सेम लाइक दैट 1000 मल्टीपल्स आर 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन. If you multiply 1000 by 1 you get 1000. If you multiply 1000 by 2 you get 2000. If you multiply 1000 by 3 you get 3000. So these numbers are multiple of thousands. So let's find out how to find out answer of multiples of these three numbers 10, 100 and 1000. Let's see an example. 12 multiply by 30. Okay, 12 मल्टीप्लाई बाय 30. प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10 हो तो हम क्या करेंगे, एक के बाद कितने ज़ीरो, एक के बाद जितने ज़ीरो हो गए उतने हम 12 के बाद लिखेंगे. ओके, तो हमारा आंसर आएगा 120. ओके, लेकिन यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं है, यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय 30. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमें ज़ीरो इग्नोर करना है. कौन सा नंबर बचा, 3. ओके, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. सो 12 3 व्हाट वी गेट 36, राइट? सो वी विल राइट 36. अब हमारा आंसर मिला हमें 36 और उसके बाद 3 के बाद कितने जीरोस है, 1 जीरो है, राइट? तो हम वो जीरो 36 के बाद लिख देंगे. तो अब हमारा आंसर कंप्लीट है 360. इजी, राइट? वैसे ही 12 मल्टीप्लाई बाय 300. सो हम ये 2 जीरोस इग्नोर करेंगे. 12 3 36, राइट? सो वी विल राइट 36 और 3 के बाद कितने जीरोस हैं, 1 2 जीरोस है तो हम 36 के बाद 2 जीरोस लगा देंगे. तो हमारा आंसर है 3600. ओके, नाउ 12 मल्टीप्लाई बाय 3000. अगेन we will ignore these 3 zeros. 12 multiplied by 3 is 36 and after 36 we will put zeros. कितने जीरो रखेंगे हम, 1 2 3. यहाँ पे 3 zeros है तो हम यहाँ पे भी 3 zeros लिखेंगे. तो हमारा आंसर है 36,000. Easy, right? Students, this was first part of multiplication. We will learn more about multiplication in our next video. Till then, keep learning with Nirja Education. Don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.